Hello, friends. A very good evening to all of you, and welcome back on another Saturday with yet another session. One shot for the preparation of Ipmat 2025. I hope I'm clearly visible and audible to every one of you. Hi, everyone. Good evening. Good evening, all of you. Come on, friends, quickly confirm if I'm clearly visible and audible so that we can kickstart this session one shot. And here we are today talking about the next topic, calendars. In the last class, we have done clocks. Okay, so I hope all the topics, all the concepts which are related to clocks are well understood, and hoping that all of you must have done a proper practice. जल्दी से बता दो proper practice चल रही है या फिर नहीं. Come on. Hello everyone. Good evening. Good evening, Ayush, Antas, Suraj. Good evening. Good evening, everyone. Okay, I can see all of you live. All right. Heath, good evening. Perfect. So मेरी आवाज आप तक clearly पहुंच रही है. Okay, great. So दोस्तों, आज का जो टॉपिक है calendars, this is important from the point of view of any examination, any aptitude examination that you write in which you have logical reasoning section. So logical reasoning point of view से calendars बहुत ज़्यादा important है, and in Jipmat examination, in Ipmat रोहतक examination, आप लोग आराम से 2 questions तो expect कर सकते हो calendars पे. All right. So today we'll be looking at the basic concept on which the topic of calendars is based on, and then of course we'll be solving different type of questions which are based on calendars, right? So before we'll start, jaldi se mere ko bata do aap logon ki preparation kaisi chal rahi hai IPMAT and JIPMAT examination के लिए, and कहाँ पे आप hurdles face कर रहे हो as far as logical reasoning is concerned. Come on, if you want to share that, you can do that, and in case you will be sharing this particular thing, then probably in future I'll be conducting sessions, स्पेशली जो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है ना, अगर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, अगर आप अपनी जो भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, देन कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस इन द मॉक पेपर और सेक्शनल टेस्ट तो आप अटक जाते हो. सो यू कैन मेंशन सम ऑफ दीज टॉपिक्स, and probably in future in my next few sessions I'll take up those sessions, right? So अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डिस्कस करो. सर आई एम क्लास 12th, सम टिप्स. विश्वजीत, क्लास 12th में अभी आए हो तो ऐसा कोई टिप्स वगैरह नहीं है. इट्स बेटर लाइक इफ यू आर क्लियर कि आईपी मैट का एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर, okay, so it will be better for you to start your preparation as soon as possible. Pick up any topic from quant, any topic from logical reasoning, verbal RC, and एक एक करके topics को revise करना शुरू कर दो, practice करना शुरू कर दो. Okay, so Harshit says that it's blood relations, but blood relations. Antas also says that blood relations confuse me. Okay, all right. Sir, revision कैसे करें? Time कम है और mocks देने हैं. All right. So one of the students think that कि भाई टाइम तो कम बचा है, ऑब्वियसली कम बचा है, अब इसके अंदर रिवीजन आपको करनी है, मॉक्स पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, तो व्हाट शुड बी योर शेड्यूल, व्हाट शुड बी योर प्रॉपर प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 month. ऑल राइट, ठीक है. सो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई रिवीजन कैसे करें, सो मैंने अभी एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए जो आज नहीं तो कल यूट्यूब पे आ जाएगा. ठीक है, सो कल, आई बिलीव कल यूट्यूब पे आ जाएगा वो वीडियो. Okay, that is a video of 10 to 15 minutes in which I have helped students in basically in making a proper plan for these last 40 days. ठीक है, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिवीजन कैसे करेंगे, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, मॉक पेपर्स कब कब देने चाहिए, कब सेक्शनल टेस्ट देने हैं. सो आई हैव गिवन यू प्रॉपर प्लान, एंड अगर आपको लग रहा है ना टाइम कम है, तो अगर वो मेरा जो प्रॉपर प्लान मैंने आपके लिए बनाया है उसको सुनोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो आपको लगेगा आपके पास बहुत सारा टाइम है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी, टाइम बहुत है. अगर आपके
कंसेप्ट्स, आपकी बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, तो आपको अगर सिर्फ रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट सीरीज देने हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत टाइम है, 1 month इज मोर देन इनफ फॉर द रिवीजन। ओके, ऑल राइट। डेटा सफिशिएंसी एंड ब्लड रिलेशन, हीथ, ऑल राइट। सर किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए 1 month पहले? निहारिका, लेवल ऑब्वियसली यार, मतलब आई वुड रिकमेंड यू आईपी मैट, if questions that we have covered in the classes, the type of questions that I'll be covering in these sessions, exactly इसी type के करने चाहिए questions, because these are the questions that are prepared on the lines of the actual questions that have been asked in the previous year. ठीक है, so level of difficulty similar रखो, बहुत ज्यादा high level of difficulty practice करने की जरूरत नहीं है, unnecessarily demotivation ही आएगा उसकी वजह से। okay? सर लॉजिकल रीजनिंग के लिए अच्छी सी बुक कौन सी है? स्टडी विद मैजिक, अच्छी सी बुक, सी हर बुक अच्छी है, कोई भी बुक खराब नहीं होती, ठीक है, इट्स दैट यू आर रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट बुक और नॉट। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है यार, ठीक है, तो मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड बुक है आईपी मैट की प्रैक्टिस के लिए, राइट, सो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो वाली बुक आईपी मैट के लिए फोकस्ड होनी चाहिए, कोई रैंडम लॉजिकल रीजनिंग की बुक मत खरीद लेना, right? So look at the title of the book. If it says IPMAT or Jipmat, buy that book for logical reasoning and start practicing questions. In this last 1 month, what you can do is just practice 50-60 questions of every topic. So एक दिन में 2 टॉपिक उठाओ, 2 टॉपिक उठाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स उठा लिया, क्लॉक्स एक टॉपिक है, कैलेंडर्स एक टॉपिक है, दोनों के 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आपको 1.5 to 2 hours लगेंगे टोटल फॉर बोथ द टॉपिक्स, ठीक है। सो दिस मच ऑफ रिवीजन, दिस मच ऑफ प्रैक्टिस इज इनफ, बिकॉज आप साथ साथ टेस्ट भी दे रहे हो, मॉक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हो, ओके। सो इस चीज के लिए इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ है। सो अगर आप रिवीजन करते वक्त 30 क्वेश्चंस भी नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ, ओके। सर ट्राई कर रहा हूं बेस्ट, और क्या और करूं सर जिससे अच्छा हो? ओके सूरज, सी देख, बहुत ज्यादा ना ओवर नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। आप जितना कर रहे हो, लेट्स से आप डेली बेसिस पे 8 to 9 आवर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब इतना तो टाइम, अगर 8 to 9 आवर्स सुनते के साथ ही आपको डर लगने लगा कि यार 8 to 9 आवर्स तो मैं दे ही नहीं रहा हूं, तो आपको 8 to 9 आवर्स तो देने जरूरी है, ओके। सो यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल आरसी। सो इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट 3 आवर्स देने की जरूरत है when it comes to revision. So if you are doing this much, it's absolutely fine. बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, ओके राइट। इफ यू आर डूइंग 9 आवर्स, अगर 9 आवर्स ऑलरेडी दे रहे हो तो 9 की जगह 10 आवर्स दे सकते हो, तो और भी अच्छा होगा। जो एक्स्ट्रा आवर्स आप दोगे, 1 or 2 एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हो, तो वो आप अपने वीक एरियाज में देना शुरू कर दो। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। सिर्फ आंख बंद करके प्रैक्टिस मत करते रहो, फाइन। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, ये 2 एरियाज वीक हैं आपके, राइट। सो यू नीड सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑन ब्लड रिलेशंस एंड डेटा सफिशिएंसी, तो वहां पे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर सकते हो। सर एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज कहां से करें? हर्षिता, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज तो कर ही नहीं सकते ना, एक्स्ट्रा जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस तो अब बनेंगे नहीं। सो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं बहुत सारे, ठीक है। एंड इन केस यू एंड अप परचेजिंग अ बुक, सो हर बुक में पीछे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, सो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑनलाइन, और कोई एक बुक परचेज कर लो जहां पे पीवाईक्यूज गिवन हो, ऑलराइट। चलिए, सो फ्रेंड्स, अब ये जो इधर उधर की बातें हैं ये तो होती रहेंगी, अब अपने इस टॉपिक पे फोकस करते हैं, कैलेंडर्स पे। तो आज का जो एजेंडा है वो है कैलेंडर्स, एंड आई एम श्योर दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ कैलेंडर, ठीक है ना। तो कोई एक स्टूडेंट बताएगा मुझे कि कैलेंडर्स में बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन चलो छोड़ देते हैं, but what is the most important principle on which the topic of calendars is based on? Yes, I want to hear it from you, so please write it.
Come on, everyone. What is the main important principle on which the questions of calendars are based on? Absolutely correct. Good. So Ayush says that odd days. So Ayush, precisely this is the thing that we need to understand कि भाई odd days होता क्या है, right? So let's look at some of the very important things before we enter questions. Some of the very important things that we should be knowing about calendars. Okay? So concept of odd days पे आने से पहले कुछ ऐसी basic चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. So first of all, number of days in a month, in a year, in a century. Now number of days बोल दो या फिर number of odd days, बात एक ही होगी, घुमा फिरा के हम number of odd days पे ही आएंगे. So quickly give me a big yes. Do you know what is the number of days in every month? So we have 12 months, January, February, March, April up till December. And do you know what are the number of days in every month? Yes or no? Perfect. Guys, respond करते रहो, ठीक है? अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो एंड ऐसे खाली बैठे हुए हो, ठीक है? सो गाइज, ये नेटफ्लिक्स नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन है जिससे आपको फायदा होने वाला है, ठीक है? अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी सारी चीजें बोल रहा हूं, तो आप जस्ट यस या नो तो टाइप कर ही सकते हो, ठीक है? सो नंबर ऑफ डेज इन एवरी मंथ, जनवरी से दिसंबर तक हमें नंबर ऑफ डेज पता है हर एक मंथ में, राइट? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, सो कैन यू राइट द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर? एक साल में कितने डेज होते हैं? जल्दी से लिख दो. Number of days in 1 year. This was a test for you. It is not necessarily 365, it can be 366 as well. So if you have written only 365, so that is not a completely correct answer. It is also possible that number of days can be 366, right? Okay, सेंचुरी की बात नहीं करेंगे हम, सेंचुरी में नंबर ऑफ डेज की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल सकते हैं, ठीक है? नाउ if I'll talk about 365 or 366 days, so in which type of year we have 365, in which type of year we have 366 days, ये पता होना चाहिए. So if I'm talking about a normal year, so a normal year will have 365 days, and a leap year जो बहुत ज्यादा परेशान करता है, I'm sorry, so जो बहुत ज्यादा परेशान करता है leap year, इसमें 366 डेज होते हैं, right? So in a normal year we have 365 days, in a leap year we have 366 days. So now the next thing that we need to know is how to identify whether a given year is a leap year or not. Okay, तो मैं आपको एक ईयर देता हूं, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, 365 डेज है उसमें या 366 डेज है? सो कैन यू राइट दिस? सो लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट? ऑल राइट, डिवाइड बाय 4. नाइस नाइस नाइस, ग्रेट. चलिए, सो पार्शियल इंफॉर्मेशन तो है हमें, ठीक है? सो जैसे हमें पता था कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, 366 किसी ने मेंशन नहीं किया. सिमिलरली यू आर मेंशनिंग दैट to identify a leap year, the year must be completely divisible by 4. So I'll say that this is a partial information. Ayush has given something extra. So Ayush बोलता है कि भाई 4 या 400 से डिवाइड होना चाहिए. तो आयुष थोड़ा सा और इलाबोरेट करोगे कि कौन से केस में 4 से डिवाइड करेंगे, कौन से केस में 400 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम हर केस में 4 या 400 से डिवाइड करके देखेंगे? सूरज सेज बट इन सेंचुरी ईयर इज टू बी डिवाइडेड बाय 400. So absolutely correct, Suraj. So Suraj, you are absolutely correct. Absolutely, Harshita. Nice, 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 nice. Great. So how to determine whether a given year is a leap year? Let's spend 2 minutes on that. So identification of leap year. Okay. Now, if year is a non-century year, right? Non-century year. So
So non-century year, it should be divisible by 4, right? So if year is a non-century year means उसके आगे double zero नहीं है. Century means 100. Okay, so 100 अगर किसी year के last में double zero है तो उसको बोलेंगे century year. Otherwise, it is called a non-century year. Fine. So if a given year is a non-century year, for example, 1964, 1982, 2056, 2137, all these years are non-century years, right? Now in this case, if I want to find out if a given year is a leap year or not, then the year must be completely divisible by 4. So I'll check 1964, it is completely divisible by 4, it is a leap year. 1982, it is not completely divisible by 4, it is not a leap year. 2056, it is completely divisible by 4, it is a leap year. 2137, it is not divisible by 4, it is not a leap year. Alright, okay? So this is non-century year, right? Non-century year में it should be divisible by 4 to qualify for a leap year. Clear? Now next thing is, in case if it is a century year, ये छोटा सा एक exception है, mind में रखना है, तो don't treat it like an exception. इसको exception की तरह treat मत करो, ये एक normal चीज है. Fine. Now in case of a century year, century year बोले तो लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए, ठीक है, राइट? सो ईयर लाइक 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, these are all century years. All right, double zero है लास्ट में. Now in case of century year, the year must be completely divisible by 400. यहाँ पे 4 से डिविजिबल होना चाहिए था, यहाँ पे इस केस में 400 से डिविजिबल होना चाहिए. So 1700 not divisible by 400, not, yes and not, right? So 1700, 1800, 1900 are not leap years, right? Now these years, if you'll see, they are divisible by 4. 4 से divisible है ये वाले years, but ये 400 से divisible नहीं है. Okay, so they will not be leap years. 2000, it is completely divisible by 400, so it is a leap year. 2100, it is not divisible by 400, it is not a leap year. All right, fine. So in case of century years, this is how we determine if it is a leap year or a normal year. All right, ठीक है? Okay. Whosoever this is, aspirant, I'll not call the first name. एक छोटा सा तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है यार कि अपना क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो मैसेज सिर्फ एक बार करो, चैट बॉक्स को स्पैम मत करो, ठीक है? अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं एक बार में पढ़ लूंगा, अगर मुझे नहीं पढ़ना होगा तो मैं 100 बार में भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? तो प्लीज एक बार लिखो, मैं इंश्योर कर रहा हूं मैं हर स्टूडेंट का मैसेज पढ़ता हूं, ठीक है? सो यू आर आस्किंग सर मैंने लास्ट 5-6 डेज में प्रिपरेशन स्टार्ट की है जिपमैट की, तो कब तक सिलेबस खत्म करें, मॉक स्टार्ट करने चाहिए? दोस्त अब 26 अप्रैल को जिपमैट का एग्जामिनेशन है, अगर आपने इसी साल के लिए एनरोल किया है, इसी साल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली टाइम कम है. आई वुड से दैट अब इतने कम टाइम में आपके पास सिर्फ 26-27 डेज बचे हैं. सो आई वुड से नेक्स्ट 15 डेज में अपना सिलेबस फिनिश करो, लास्ट 10 डेज मॉक एंड रिवीजन के लिए रखो, ठीक है? तो 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए कैसे भी. ओके, ऑल राइट, ग्रेट. सर व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ आईपीमैट क्रैश कोर्स 2025? सुमेधा, क्लास टाइमिंग्स की अगर आप बात कर रहे हो, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं. ऑन अ नॉर्मल डे वी हैव 2 क्लासेस, कभी कभी 2 क्लासेस भी होती हैं, तो क्लास टाइमिंग्स आर 3 to 5 एंड 6 to 8, ठीक है? ओके, ऑलराइट. चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो था कि लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है, लीप ईयर कौन सा होगा, तो ये हम देख चुके हैं. अब द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच the topic of calendars is based on is called finding the number of odd days. अब odd days क्या होता है?
ऑड ये इवन ऑड वाला ऑड नहीं है, ठीक है? ऑड मींस एक्स्ट्रा डेज, राइट? नाउ द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच कैलेंडर वर्क्स ऑन इज द रिपीटिशन ऑफ डे. टुडे इज अ सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे कितने डेज बाद आएगा? 7 डेज बाद. वी हैव 7 डेज इन अ वीक, right? So if today is a Saturday, next Saturday will be 7 days later, right? So if today is a Saturday and I'll ask you कि भाई आज से 7 days बाद कौन सा डे होगा, you will say that it will be a Saturday. If I'll ask you आज से 14 days बाद, 21 days बाद, 35 days बाद, 84 days बाद, 98 days बाद कौन सा दिन आएगा, right? So in all these cases your answer will be a Saturday. क्यों ऐसा क्यों है? रीजन बी ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 7. ये सारे के सारे 7 के मल्टीपल्स हैं. सो इफ ऑन द करंट डे, आज के दिन पे अगर मैं नंबर ऑफ डेज ऐड कर रहा हूं जो 7 का मल्टीपल है, देन एवरी टाइम द डे विल रिपीट. So the day repeats after every 7 days. So if you'll keep on adding the number of days which is a multiple of 7, the day will keep on repeating, right? So this is the basic principle of calendars. But if you add number of days which is not a multiple of 7, then the day will change. For example, if I'll ask you आज से 50 days बाद कौन सा day होगा, so what will be your answer for this question? Absolutely. So यार अपना नाम चेंज करो, ब्लडी एस्पिरेंट रखा हुआ है नाम, तो कोई अच्छा नाम रखो. ओके, सही है. नहीं अभिषेक, क्रिटिकल रीजनिंग मैं नहीं करवाऊंगा, वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है? चलिए, सो करेक्ट आंसर इट विल बी अ संडे. नाइस, वेरी गुड. ओके, सो 50 डेज. अब 50 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 50 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द रिमाइंडर. सो विल कैलकुलेट द रिमाइंडर, राइट? सो 50 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 1. नाउ वट एवर दिस रिमाइंडर इज, दिस रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज, राइट? So 50 और whatever the number of days is, उसको 7 से डिवाइड करेंगे. 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा, that particular remainder is called odd days. And whatever remainder you get, इसको ऐड कर दो करंट डे पे, right? So here in this case we have a remainder of 1. 1 will be added to Saturday. So Saturday में 1 ऐड कर दो, तो Saturday plus 1 क्या हो जाएगा? It will be a Sunday. Right? So I can say that 50 days, आज से 50 days बाद definitely Sunday है, right? तो almost in every question of calendars you'll have to do this thing, but level of difficulty, challenges अलग-अलग होते हैं. Okay? So in none of the questions you will be given this number. Directly ये number given नहीं होगा. They will not give you this number of days directly. You will have to calculate these number of days and then perform the calculations. अब आपके ऊपर है कि आप ये जो नंबर ऑफ डेज है ये कितनी जल्दी कैलकुलेट करते हो, कितनी कम से कम चीजें लिखते हो, कितना कम से कम रफ वर्क करते हो, कितनी स्पीड इंप्रूव करते हो, राइट? सो इट्स टोटली अप टू यू, राइट? सो इन टुडेज सेशन आई विल बी गिविंग यू बेसिक टेक्निक्स यूजिंग विच यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर स्पीड, राइट? सो लेट्स एंटर इनटू द क्वेश्चंस विद दिस कंसेप्ट. जो भी मैंने अभी बताया है आपको, इस चीज के साथ हम एंटर करते हैं क्वेश्चंस में, एंड लेट्स सी व्हाट ऑल चैलेंजेस डू वी फेस एंड एट व्हाट प्लेसेस वी कैन सेव आवर टाइम, राइट? सो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू 1 मिनट, प्रोबेबली लेस देन 1 मिनट. कैलकुलेट योर आंसर एंड पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स. जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है अभी. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी आई विल डिस्कस दोज थिंग्स. अगर आपके पास कोई और क्वेरी है कैलेंडर्स के अलावा, तो हम कैलेंडर्स का टॉपिक आज खत्म होने के बाद 5 मिनट लगा सकते हैं, 10 मिनट बैठ सकते हैं उस पे, एंड वी कैन डिस्कस दोज थिंग्स, बट नॉट नाउ. सो लेट्स फोकस ऑन कैलेंडर्स. सूरज, आई डेफिनेटली वेट, ठीक है?
सो डू नॉट वरी, मैं आज डेफिनेटली वेट करूंगा. ओके, सो वी विल हैव अ क्वेरी सेशन 5-10 minutes once our agenda is over. Okay, Suraj? सो सूरज, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऋषभ, डे चेंज होगा. आप बोल रहे हो मंथ में 31 डेज भी तो आते हैं. डेफिनेटली 31 डेज आते हैं, बट अभी सिंपल क्वेश्चन किया था कि आज से 50 डेज बाद कौन सा डे होगा, राइट? अब इस क्वेश्चन के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि अगर एक मंथ से दूसरे मंथ में जाना है तो हम करेंगे क्या, राइट? सो आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. ओके ऋषभ, सो जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तब फोकस करना आप. So 26th of January 2009 is a Thursday. What was the day of the week on 11th of November 2009? All right. So all of you come here now. Answers बहुत सारे आ गए हैं. Thursday, Wednesday, ठीक है. So Thursday तो ऑप्शन में नहीं है, बट है none of the above लिखा हुआ है. Wednesday ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी. ओके, चलिए. So कैसे परफॉर्म करना है? Now all of you focus here. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको जो कन्वेंशनल मेथड है ना, जिससे आपको समझ में आए कि भाई कर क्या रहे हैं, पहले मैं वो मेथड यूज करूंगा, राइट? सो इन दिस मेथड आई विल बी राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग. मैं सब कुछ लिखूंगा, ठीक है? राइट नाउ, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. 2009, इज इट अ लीप ईयर और अ नॉर्मल ईयर? फटाफट से लिख दो. परफेक्ट. सो इट्स अ नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर. फाइन. सो नॉर्मल ईयर है तो फेब्रुवरी में 28 डेज होंगे. ओके, नाउ अब करना क्या है हमें? 26 जनवरी के बाद 11 नवंबर पे पहुंचने के लिए हमने कितने डेज ऐड किए? सो हाउ मेनी डेज आर एडेड टू 26 टू रीच 11 नवंबर? ये फाइंड आउट करना है. सो मैं क्या करूंगा? आई विल राइट द नंबर ऑफ मंथ्स इन एवरी मंथ. लाइक सॉरी, आई विल राइट द नंबर ऑफ डेज इन एवरी मंथ जो ऐड हुए हैं 26 जनवरी के बाद. ओके, नाउ जनवरी हैज 31 days. 26 days आर ऑलरेडी गॉन. 26 जनवरी पे ऑलरेडी बैठे हैं हम, उसके बाद से काउंट करना शुरू करना है. तो 31 days में से 26 days चले गए. जनवरी में 5 days बचे हैं. फेब्रुवरी 28 days, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, केयरफुल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. कहां तक जाना है? 11 नवंबर. सो 11 नवंबर, दैट मींस 11 days ऑफ नवंबर, राइट? तो मैंने क्या किया? आफ्टर 26 जनवरी एवरी मंथ के नंबर ऑफ डेज लिख दिए दैट वी हैव एडेड टू रीच 11 नवंबर. ऑलराइट, ठीक है? अब क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप विल बी, आई विल एड ऑल दीज डेज. इन सबको ऐड करूंगा और मेरे पास एक नंबर आ जाएगा. फाइन. सो कैन यू प्लीज हेल्प मी इन एडिंग दीज नंबर्स? इन सबको ऐड करके एक बार नंबर ऑफ डेज बता सकते हो? टू 289 आ रहा है मेरा साउंड. ओके, सो द नंबर ऑफ डेज इज 289. ठीक है? सो 289 डेज आर एडेड in 26th of January to reach 11th of November.
अब क्या करेंगे, 289 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। 289 when divided by 7, the remainder comes out to be 2. ओके, सो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सो थर्सडे में 2 ऐड करेंगे, राइट? सो थर्सडे प्लस 2, ओके, थर्सडे प्लस 2, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो थर्सडे में 2 ऐड करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? आंसर शुड बी अ सैटरडे, right? Okay, so this is how the answer can be calculated. Saturday, so that means none of the above. Option D is correct. Option D, none of the above से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल आंसर क्या आया है? एक्चुअल आंसर कितना आया है? हमारा सैटरडे आया है। ओके, राइट? ओके, अब क्या क्वेश्चन आ रहा है? मंडे होगा ना सर? भव्या, थर्सडे दिया हुआ था, थर्सडे में 2 ऐड किया, सैटरडे आ गया। सो सब कुछ मैंने यहां पे क्लियर किया है। ओके, परफेक्ट। सर जी शॉर्टकट नहीं है, इतना लंबा सॉल्यूशन होगा। ऋषभ, थोड़ा पेशेंस रखोगे यार, ठीक है? सो एक एक चीज प्रॉपरली बताऊंगा ना, हाँ? या तो मैं सीधा शॉर्टकट बता दूं, बेसिक समझ में ही नहीं आएगा, तो एग्जाम में कुछ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ गया तो शॉर्टकट काम नहीं करेगा तुम्हारा। ओके, तो थोड़ा सा लाइफ में पेशेंस की भी जरूरत है। चलिए, अब टाइम सेव करना है, ये मेथड तो क्लियर है आप सबको। ओके, किया क्या है यहाँ पे? अब टाइम कहां कहां सेव कर सकते हैं, तो मैं ये पूरा सॉल्यूशन हटा रहा हूं। ओके, सॉल्यूशन नहीं हटा रहा, मैं ये चीज हटा रहा हूं। ओके, सो व्हेनेवर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट आई डू, जब भी मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, सबसे पहली चीज, आई डोंट राइट द नेम ऑफ दीज मंथ्स। मैं इन मंथ्स का नाम नहीं लिखता। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, आई डोंट राइट द नेम ऑफ द मंथ्स। नाम से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सीक्वेंस में लिखना है, नंबर ऑफ डेज, सो वो लिख सकते हैं। ओके, दिस इज वन प्लेस वेयर आई सेव टाइम। सेकेंड थिंग वेयर आई सेव टाइम, आई डू नॉट एड दीज नंबर्स। मैं इन नंबर्स को ऐड नहीं करता, ठीक है? राइट? अब ऐड नहीं करता तो करता क्या हूं? सो आप लोगों ने क्या किया, इन सबको ऐड किया एंड देन डिवाइड बाय 7 करके रिमाइंडर कैलकुलेट किया। व्हाट आई डू इज, मैं इन नंबर्स को अलग अलग 7 से डिवाइड करता हूं एंड रिमाइंडर लिख देता हूं। तो 5 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5, यहां पे 0, 3, 2, 3, 2, 3, कीप फोकसिंग। अभी और बताऊंगा कैसे टाइम सेव होगा, ठीक है ना? 3, 2, 3 एंड 4, राइट? अब इससे फायदा क्या होगा? इससे ना एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाती है। काफी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम ऐड करते हैं तो कभी कभी गलती हो जाती है एडिशन में। अब जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी गलती होगी, जितने बड़े नंबर्स होंगे उतनी गलती होगी, तो मैं गलती का स्कोप ही रिमूव कर देता हूं, राइट? सो व्हाट आई डू इज, आई डिवाइड ऑल दीज नंबर्स बाय 7 एंड राइट द रिमाइंडर, ठीक है? अब 7, अगर मैं 7 डेज बाद पूछता हूं कौन सा डे होगा, तो सेम डे होगा, तो 7 की तो कोई यूज नहीं है। तो यहां से अब 7 7 7 के ग्रुप्स बनाना शुरू कर दो। सो 4 + 3 7 होता है, इसको एलिमिनेट, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? डन। नाउ 5 and 2 इट इज इक्वल टू 7, रिमूव कर दो। ओके, देन 3, 3, 2, आई एम सॉरी, दोबारा देखते हैं। सो अभी तक मैंने क्या क्या रिमूव किया है? 5 and 2 is 7, 4 and 3 is 7। अब 2, 3 and 2, 2, 3 and 2, एक 7 बन गया, उसको रिमूव कर दो। बचा क्या? 3, 3 and 3, 9, 9 बचा। 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है। ओके, तो सबसे पहला तो टाइम सेव करना है, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, कैलकुलेशंस कम करनी है, गलती का स्कोप रिमूव कर देना है। तो अभी तक मैंने वो किया है, राइट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई डू टू सेव टाइम, टू इंप्रूव माय एक्यूरेसी, ओके, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस। डन, ठीक है? तो आंसर आ गया 2, थर्सडे में 2 ऐड करो, आंसर वही आएगा सैटरडे। यहां पे गलती के चांसेस कम होंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू मैं एक और चीज बताता हूं जहां से मार्जिनली और आप टाइम सेव कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। All of you, it is on your screen. 21st January 2016 is a Thursday. What was the day of the week on 23rd of September 2016?
कम ऑन। नाउ अब जो मैंने आपको मेथड बताया है, ट्राई टू अप्लाई दैट मेथड एंड फाइंड आउट द आंसर। 21st of January 2016 is a Thursday. What was the day of the week on 23rd of September 2016? Be very careful about 2016. Okay? All right, all right. Chaliye. So got different answers. Now I will do this question exactly in the same manner, the way I will attempt it in the examination. जैसे मैं करूंगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, 2016 इट्स अ लीप ईयर. सो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे. ओके, तो जो भी मैं एक्चुअली में रफ वर्क में लिखूंगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं. स्पीड थोड़ी कम कर दूंगा सो दैट आप लोगों को समझ में आए एंड आई विल बी स्पीकिंग एवरीथिंग. ओके, 21 जनवरी से स्टार्ट करना है एंड 23 सितंबर पे जाना है. सेम ईयर की बात हो रही है. जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं. 21 डेज जा चुके हैं, बचे हुए डेज कितने हैं? 10. आई विल नॉट राइट 10. मैं 10 नहीं लिखूंगा और टाइम सेव करूंगा. 10 छोटा नंबर है, 10 को 7 से डिवाइड करके डायरेक्टली आप रिमाइंडर लिख सकते हो. व्हाई नॉट? ठीक है, तो जनवरी में 10 डेज है, 10 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 3. ओके, अब डायरेक्टली रिमाइंडर लिख रहे हैं. इन द प्रीवियस क्वेश्चन आपने क्या किया था टाइम सेव करने के लिए? आपने सिर्फ ये वाले नंबर्स लिखे थे. ओके, मंथ्स के नाम नहीं लिखे थे, आपने सिर्फ ये वाले नंबर ऑफ डेज इन एवरी मंथ. मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ डेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिमाइंडर लिखो ना. ओके, अगर बहुत बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करने में दिक्कत होगी, यहां तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, सो यू कैन सेव टाइम हियर एज वेल. जनवरी 3 डेज, राइट. फेब्रुअरी लीप ईयर है, 29 डेज होंगे, 29 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. सितंबर में 23 डेज है, 23 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2. दैट्स इट, सिर्फ ये वाले नंबर्स लिखे. अब क्या करना है, 3 के ग्रुप्स, सॉरी 7 के ग्रुप्स बनाने हैं. सो यहां पे एक 7 बन गया, यहां पे एक 7 बन गया. ये कितना है? 8. 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1. ऑलराइट, अब थर्सडे में 1 ऐड कर दो. थर्सडे प्लस 1 इज अ फ्राइडे. So Friday should be the correct answer of this question. Okay, right? Options को ignore कर दो. Friday is the correct answer of this question. Right? Sir, answer of first question will be Wednesday. Deepika, Saturday आया था previous question का answer. आशुतोष, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. 1900 इज नॉट अ लीप ईयर. ठीक है, 1900 नॉट अ लीप ईयर, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. सो गाइज, मेरे से ना जो भी आप रिक्वेस्ट तभी करो अगर आप इस सेशन में स्टार्टिंग से हो. ठीक है, अगर आप बीच में ज्वाइन कर रहे हो, मैं कुछ पहले बता चुका हूं एंड आप दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा. मिस्टर गेमर, सी ये यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है यार. आई एम रियली सॉरी, डिफेक्टिव क्लॉक्स के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, बट प्रोबेबली इन द लेटर सेशंस आई ट्राई टू इंक्लूड देम. रियली सॉरी, मैंने डिफेक्टिव क्लॉक्स के क्वेश्चंस नहीं कराए. ओके, चलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ऐड वन अनदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेयर द ईयर इज चेंजिंग. ओके, अब ईयर चेंज हो रहा है. सो अगेन फॉर दिस वन आई विल गिव यू अ फ्यू मिनट्स, 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट दे रहा हूं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड पोस्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. सो दीपिका, आपने गूगल पे सर्च कर लिया, बट दीपिका, चलो मैं आपको बता देता हूं. आपने गूगल पे सर्च कर दिया कि 11th ऑफ नवंबर 2009 क्या था.
बट मैंने क्वेश्चन दिया है कि भाई 26 जनवरी 2009 अगर थर्सडे है तो 11th ऑफ नवंबर 2009 क्या होगा? ठीक है, तो दीपिका दिमाग लगाओ, लेकिन पूरा दिमाग लगाओ। आपने गूगल पे चेक कर लिया, बहुत सही, मुझे गलत प्रूव कर दिया, बहुत सही, लेकिन क्वेश्चन को समझो। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको रेफरेंस दिया हुआ है 24th ऑफ जून 2011 अगर थर्सडे है, इफ दिस इज अ थर्सडे देन ये वाला डे क्या होगा? ओके So people, 24th of June 2011 is a Thursday. What was the day of the week on 24th of June 2025? Another level of difficulty is introduced because now we are going into a different year. 2011 से उठ के हम 2025 में जा रहे हैं. Okay? So अभी तक दो आंसर्स आए हैं मेरे पास, आशुतोष एंड हीत, and both are saying different answers. Suraj has also given the answer. So Monday and Saturday. So दो different answers है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, Monday, Saturday. All right. Saturday by Bhavya as well. All right. Chris, you are done, so please go ahead and you may post your answer. And so अगर किसी का डी आ रहा है ना, क्रिस आपका डी आ रहा है, तो प्लीज टेल मी व्हाट डे ऑफ द वीक इट इज. ऋषभ सेज थर्सडे, विशाल सेज मंडे. मंडे ऑलरेडी है यहाँ पे, मैं थर्सडे लिख देता हूं. ठीक है, थर्सडे यहाँ पे ऑप्शंस में है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, काफी सारे आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे. पहले चलते हैं 24th ऑफ जून से. ईयर इग्नोर कर दो पहले. 24th ऑफ जून से हम जाएंगे 24th ऑफ जून. राइट, अब यहां पे तो हमें डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, 24th जून डेट सेम है, तो फर्स्ट स्टेप का जो एफर्ट्स है ना वो हमारे बच गए. अब क्या करना है, 2011 से 2025 पे जाना है. राइट, so now let's talk about the years. How many years are added in 2011 to get 2025? 2011 में कितने years add किए कि 2025 आ गया? जल्दी से लिख दो. Come on, all of you. Nice. So 14 years. Okay. Now, out of these 14 years, there are some leap years and there are some normal years. So, number of leap years लिख देते हैं, कितने हैं? Now, 2011 के बाद 2012 पहला leap year है, 2016, 2020, that's it, and 2024 as well. Okay, so there are 4 leap years. ओके, 2011 से 2025 पे जाना है. सो वी हैव टोटल 14 इयर्स. 14 इयर्स में से कितने लीप इयर्स हैं? 4 लीप इयर्स हैं. एंड नॉर्मल इयर्स कितने होंगे? नॉर्मल इयर्स विल बी 10. ऑलराइट, सो सर 2026, आरुषि व्हाई यू आर राइटिंग 2026 अगेन एंड अगेन? सो मेरे को ये भी तो बता दो ना, यू आर राइटिंग 2026, उसका रीजन क्या है? यहाँ पे 2011 है, यहाँ पे 2025 है. ओके, सो टेल मी द रीजन. अच्छा, 2026 बैच, यार ऐसा बोलो ना. मैं सोच रहा हूं आप बोल रहे हो यहाँ पे 2025 नहीं है, 2026 है. ओके, सो आरुषि इसके बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, पहले ये एजेंडा कंप्लीट कर ले. सो लीप ईयर 4 है, नॉर्मल ईयर 10 है. अब भाई लीप ईयर में टोटल हमने देखा था 366 डेज होते हैं.
सो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 2, एंड 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1. सो इन अ लीप ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 2, इन अ नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1. सो अब क्या करेंगे, लीप ईयर 4 है, 4 लीप ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 ऑड डेज, 10 normal years multiplied by 1, 10 odd days, right? So 8 plus 10 कितना हो जाएगा, 18. 8 plus 10 is 18, और 18 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर आ जाएगा 4. That's it, खत्म. I'll explain it again. So total 14 years थे when I go from 2011 to 2025, right? Now out of these 14 years 4 leap years है, so 10 normal years हो जाएंगे. Every leap year has 2 odd days, so 4 leap years multiplied by 2, 8 odd days. Every normal year has 1 odd day, so 10 multiplied by 1, 10. So total number of odd days कितने हो गए, 8 plus 10, that is 18. 18 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 4. So Thursday में 4 ऐड कर दो, Friday, Saturday, Sunday, Monday. The answer should be a Monday, right? So जिसने भी Monday आंसर दिया है, absolutely correct. Okay, right? चलिए, so wonderful, क्वेश्चन खत्म. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से. अब यहां पे डेट भी चेंज हो रही है, ईयर भी चेंज हो रहा है. Thank you, Harshita. Good, good, yaar. If it is really building your approach, very good. Keep it up. Arushi, meanwhile, you were asking about 2026 batch. So 2026 batch we are about to launch in a few days. ठीक है, so उसके लिए वेट करना पड़ेगा. अभी IPMAT 2026 बैच लॉन्च नहीं हुआ है. ओके, दिस मंथ, नो नॉट दिस मंथ, ऑब्वियसली मार्च में नहीं होगा, अप्रैल और मई हम 2026 बैच डेफिनेटली लॉन्च कर देंगे, एंड यू विल गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल. The application of IPMAT वाला, फिजिक्स वाला की जो एप्लीकेशन है IPMAT वाला की, so stay tuned to that application and the YouTube channel as well. But in the next few days we'll be starting with the IPMAT batch. Sir, drop के लिए IPMAT 2026 बैच आएगा? Yes, Mr. Gamer, definitely आएगा. सी, अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप ड्रॉपर हो या फिर आप न्यूली ज्वाइंड एस्पिरेंट हो, आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वी विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरी बेसिक थिंग. ठीक है ना? सो जो भी बैच होगा वो आप ज्वाइन कर सकते हो. क्रिश, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है. ओके, सो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा रेज हो रहा है. जरूरी नहीं है ना कि आपके IPMAT एग्जाम में बहुत इजी ही क्वेश्चंस आएंगे. All right, Suraj and Vishal, both of you are actually quick. Nice, good. And Heath, so 3 of you have given the answer. I would suggest 4 of you, I would suggest both of you, all of you, cross check your answer. ओके ओके, ऑल राइट. चलिए खत्म करते हैं इसको जल्दी से. 5th of August 2021 से हमें जाना है 19th of October. सो 5th of August से 19th of October पे चलते हैं पहले. राइट, नाउ अगस्त टोटल 31 days. 5 days are already gone. We are left with 26 days. 26 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 5. August is over. September,
देन अक्टूबर, 19 अक्टूबर पे जाना ही है, 19 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 5. ओके, नाउ 5 and 2 is 7, so I'm left with only 5 odd days. Right? Keep it as it is. Done? Second step, 2021 से मुझे जाना है 2016-9 पे. हाउ मेनी ईयर्स आर एडेड इन टोटल? कितने ईयर्स ऐड किए हैं 21 से 69 पे जाने के लिए? टेल मी, 21 से 69 पे जाने के लिए कितने ईयर्स ऐड किए हैं? 48 ईयर्स. ओके, डन. नाउ आउट ऑफ दीज 48 ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर? नंबर ऑफ लीप ईयर्स आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो. 21 के बाद पहला लीप ईयर 24, 28, 32. आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, सो टोटल आई एम सॉरी, सो टोटल 12 लीप ईयर्स होंगे. सो 12 लीप ईयर्स हैं तो 36 नॉर्मल ईयर्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इनको ऐड कर दिया. राइट, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा. 60 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 4. ऑलराइट, अभी तक क्लियर है? तो अभी 4 ऑड डेज आए हैं, पहले 5 ऑड डेज आए थे, तो 5 and 4 आप इनको ऐड कर सकते हो. सो अर्लियर देयर वर 5 ऑड डेज, नाउ देयर आर 4 ऑड डेज. 5 plus 4 is 9, सो टोटल 9 ऑड डेज. अब 9 को भी 7 से डिवाइड कर दो एंड रिमाइंडर इज 2. ओके, सो रिमाइंडर इज 2. संडे में 2 ऐड कर दिया, आंसर इज अ ट्यूसडे. ओके, सो मेरा तो आंसर ट्यूसडे आ रहा है, और सबका आंसर क्या आया था एक बार चेक कर लेते हैं. सो आदित्य ने बोला था ट्यूसडे, विशाल सेड ट्यूसडे, सूरज सेड ट्यूसडे. A lot of you have given earlier Tuesday as the answer. Harshita has given Tuesday as the answer. Perfect, perfect, perfect. Great. So Tuesday is the correct answer for this one. Okay, चलिए अब आगे चलते हैं and looking at the next type of questions. कैलेंडर रिपीट कब करेगा? ओके, तो ये बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ये आपको कभी ना कभी एग्जाम में मिल ही जाएगा कि एक ईयर दिया हुआ है 2013. The calendar for the year 2013 would be same as that of the year. So इनमें से कौन से ईयर का कैलेंडर सेम होगा? तो एक तो तरीका है 2013 से स्टार्ट करके हर एक ईयर पे चले जाओ, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लो. ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ऑड डेज अगर 0 आ जाता है, मतलब 7 का मल्टीपल आ जाता है, तो आंसर आ गया, खत्म. ठीक है ना? राइट, तो एक तो ये बहुत सिंपल सी अप्रोच है. ओके, सो 2013 के बाद मैं 2017 अगर चेक करता हूं, तो हाउ मेनी इयर्स आर एडेड? सो फॉर दिस वन 4 इयर्स आर एडेड. राइट, हाउ मेनी लीप इयर्स आर देयर? 1 लीप ईयर, 3 नॉर्मल ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऐड किया, 5 ऑड डेज. सो 2017 कैनॉट बी द आंसर. राइट, 2019 चेक करते हैं. सो 2013 से 2019 पे जाने के लिए 6 इयर्स ऐड किए. 6 में से कितने लीप ईयर्स हैं? एक ही लीप ईयर है, 5 नॉर्मल ईयर है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, टोटल 7 आ गया. 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर आ जाएगा. तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो आंसर शुड बी 2019. सो 2019 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. राइट, तो ये मेथड बहुत ही बेसिक सा मेथड है, आप ये मेथड यूज कर सकते हो. ओके, राइट. श्वेता यू आर आस्किंग 2 मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज श्वेता इसी सेशन में मैंने बताया था, तो चलो मैं दोबारा बता देता हूं. 2 हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. अब लीप ईयर क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है, अगर ये समझना है तो आज का सेशन ना शुरू से देखना पड़ेगा. तो आई थिंक आपने इस सेशन को शुरू से ज्वाइन नहीं किया, आप थोड़ा सा शायद थोड़ा सा लेट आए हो, तो इसीलिए आप मिस कर रहे हो. ठीक है विशाल, अनदर मेथड. ठीक है,
सो 2014 के लिए अब यही चीज करनी है। पहले मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं, तो जल्दी से आंसर दे दो। व्हाट विल बी द आंसर अमंग दीज? नहीं यार, आई एम सॉरी, ये ऑप्शंस रिमूव कर दो। सो रिमूव दीज ऑप्शंस एंड फाइंड आउट योर ओन आंसर। अब माय क्वेश्चन इज, अब ऑप्शंस नहीं है आपके पास, नो ऑप्शंस आर देयर। Which year will have the same calendar as that of 2014 immediately after 2014? अर्लीस्ट बताना है। सो अर्लीस्ट 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2020, 2026, 2042. So these are the three answers in front of me. I'm giving you 1 complete minute. आराम से डिटरमाइन कर लो इसका आंसर। ओके, सो काफी लोगों का आंसर 2020 आ रहा है, 22 भी आया है। तो मैं एक और मेथड बता देता हूं डिटरमाइन करने का, ऑप्शंस अगर आपको चेक नहीं करने, ठीक है। सो सबसे हम क्या करेंगे, एक एक ईयर एक एक करके कंसिडर करेंगे। सो मैं क्या करता हूं, जनरली मैं क्या करता हूं, 1 जनवरी 2014 इसको मैं मंडे अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम कर लिया, ठीक है। सो 1 जनवरी 2014 अगर मंडे अज्यूम कर दिया, अब एक एक ईयर चेक करेंगे, ठीक है। इसका भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो 1 जनवरी अगर जिस भी ईयर का मंडे आ जाएगा तो वो वाला ईयर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, तो वो मैं अभी बता देता हूं प्रोसेस में। सो पहले नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं, देन शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है। सो 1 जनवरी अगर 1 जनवरी 2014 अगर मंडे है, सो ऑल ऑफ यू 1 जनवरी 2015 क्या डे होगा? सो 1 कंप्लीट ईयर ऐड किया है तो ये ट्यूसडे हो जाएगा, +1, ओके। 1 जनवरी 2016 क्या होगा? अब सुनते जाओ, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन बट फॉर एनी नॉर्मल रैंडम क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू। कुछ ना कुछ कैची मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अब आंसर लिखा है थर्सडे। ऋषभ, ये थर्सडे नहीं होगा, ये वेंसडे होगा। अब क्यों? कुछ नया सीखने को मिला है आपको। अब लीप ईयर इफेक्ट, आप बोलोगे 2016 तो लीप ईयर है, बट माय डियर फ्रेंड, लीप ईयर इफेक्ट तब कंसिडर होता है जब हम लीप ईयर की 29 फरवरी से पास करते हैं। 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट करके मैं 1 जनवरी 2016 पे आया हूं। वी हैव नॉट क्रॉस्ड द 29 फरवरी ऑफ 2016, तो लीप ईयर इफेक्ट नहीं आएगा, अभी सिर्फ +1 होगा। नेक्स्ट 1 जनवरी 2017 अगर देखेंगे तो नाउ आई हैव क्रॉस्ड 29 फरवरी, नाउ यू विल बी एडिंग 2, सो अब +2 होगा। सो वेंसडे में +2 किया, फ्राइडे आ गया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए। डन। तो एक ये चीज तो हमें समझ में आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये वाला प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अब इसको शॉर्ट करने के लिए बेसिकली मैंने मंडे से स्टार्ट किया है और मुझे मंडे पे रुकना है। आई हैव टू स्टॉप एट मंडे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली 4 इयर्स ऐड कर देता हूं। अगर आप 4 इयर्स ऐड करोगे तो एवरी 4 इयर्स विल हैव 5 ऑड डेज,
ओके आप कैलकुलेट करके देख लो, 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स में से एक लीप ईयर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आ जाएगा, रिमेनिंग 3 ईयर्स में 3 आ जाएगा, 2 + 3 विल गिव यू अ 5। सो 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऐड करोगे तो 5 ऑड डेज हो जाएंगे, ये टाइम सेव करता है। तो 4 ईयर्स ऐड कर दो, ठीक है, डायरेक्टली 1 जनवरी 2018 पे जंप कर लो, और यहां पे 5 ऐड हो जाएगा, सो मंडे +5 इज अ सैटरडे, राइट। तो अब आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में पता लग जाएगा, केयरफुल। हाँ, अब सैटरडे आ गया है तो हमें मंडे पे ही जाना है, तो मंडे तो बहुत पास आ गया, तो अब 1 ईयर आप जंप कर सकते हो। 1 जनवरी 2019 ये संडे हो जाएगा, केयरफुल। 1 जनवरी 2020 will be a Monday and we will be happy, but don't be happy, this is not the correct answer. Why? 2014 ये एक नॉर्मल ईयर था, 2020 लीप ईयर है। सो अगर क्वेश्चन ईयर नॉर्मल ईयर है तो आंसर ईयर भी नॉर्मल ईयर होना चाहिए, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर ऑफ डेज 2014 में 365 होते हैं, नंबर ऑफ डेज 2020 में 366 होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज ही इक्वल नहीं है तो कैलेंडर तो क्या ही इक्वल होगा। ठीक है, राइट। ऑल्सो कैलेंडर सेम होगा, कैलेंडर सेम होगा अप टिल 28 फरवरी तक कैलेंडर सेम होगा, 29 फरवरी यहाँ पे आते के साथ ही कैलेंडर डिफरेंट हो जाएगा। तो अब ये आंसर नहीं है, तो अब प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, +4 करो, 1 जनवरी 2024 यहां पे +4 किया, यहां पे +5 हो जाएगा, तो यहां पे सैटरडे आ जाएगा। फिर 25 पे जाएंगे, 1 जनवरी। सो टेल मी 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 पे आएंगे तो कितने डेज ऐड होंगे? यस, एब्सोल्युटली। तो यहां पे 2 ऐड हो जाएगा और यहां पे मंडे आ जाएगा। सो 2025 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको एक एक ईयर ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो बीच में +4 एंड +4, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। ऑलराइट, सो जिसने भी 2025 आंसर दिया है, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ऑलराइट, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट तो खत्म हो गए हैं मेरे पास, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का कौन सबसे पहले आंसर करता है। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्विकली गिव मी एन आंसर फॉर दिस वन। एंड प्लीज इग्नोर दी ऑप्शंस, ऑप्शंस को इग्नोर कर दो आप लोग। मिस्टर गेमर, सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर्स एंड राइट इट अगेन। सूरज, जो आंसर दिया है आपने, ऋषभ आंसर जो भी दिया है आपने, प्लीज एक बार उसको दोबारा से चेक करो। ऑलराइट मिस्टर गेमर, परफेक्ट। ऑलराइट अंकुर, वेरी गुड। चलिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल ऑफ यू स्टॉप। नाउ दिस ईयर 2016 इज इट अ नॉर्मल ईयर और अ लीप ईयर? ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, जल्दी से बता दो। ऑब्वियसली एक लीप ईयर है, तो आंसर ईयर भी लीप ईयर होना चाहिए। अब अपने आंसर्स को देखो, किसी का आ रहा है 21, किसी का आ रहा है 22, किसी का आ रहा है 37। ओके, सो अगर 2016 लीप ईयर है तो आंसर ईयर भी तो लीप ईयर होना चाहिए। ये नहीं सोचा, बहुत कम लोगों ने सोचा है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे 4 ऐड करता हूं, 4 इयर्स, तो 4 इयर्स अगर ऐड करेंगे तो 5 ऑड डेज ऐड हो जाएंगे।
राइट। 2016 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 4 इयर्स बाद। तो कैन आई से दैट मुझे सिर्फ 4 इयर्स ही ऐड करने चाहिए, मुझे तो कुछ और देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 4 इयर्स ऐड करो एंड सिर्फ 4 इयर्स के मल्टीपल्स में ही ऐड करो। डू नॉट लुक एट 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, राइट। सो 4 इयर्स ऐड हुए, 5 ऑड डेज ऐड हुए। एक और बार 4 इयर्स ऐड करूंगा तो 5 ऑड डेज ऐड हो जाएंगे, राइट। अब मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज जो है उसको क्या बनाना है? मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज को 7 का मल्टीपल बनाना है। 5 + 5 इज 10। एक और बार 5 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, एक और बार 5 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। तो मैथ्स का एक सिंपल कंसेप्ट, 5 5 5 5 कितनी बार ऐड करें कि ये 7 का मल्टीपल बन जाए? 5 5 5 5 को कितनी बार ऐड करें कि ये 7 का मल्टीपल बन जाए? जल्दी से बता दो। एब्सोल्युटली। तो 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 5 5 5 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे। अब 7 टाइम्स ऐड करने की क्या जरूरत है? सीधा इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट। तो एवरी 4 इयर्स हैज 5 ऑड डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज मुझे 7 का मल्टीपल बनाना है तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ इयर्स कितने हो जाएंगे? 4 × 7। After 28 years, after 28 years, 35 odd days will be added. 35 odd days का मतलब क्या है? 0 odd days and the day will remain same. तो 28 years इस वाले ईयर में ऐड कर दो and that will be your answer. ओके, सो लीप ईयर है अगर तो लीप ईयर में 28 इयर्स ऐड कर दो। 2016 + 28 इज 2020 2044. So 2044 will be the correct answer of this question. Yes, Rishabh, now your answer is correct. So some of the students have already given the correct answer. पहली बार में correct answer दे दिया था. I think Mr. Gamer was the first one to give the correct answer. And now a lot of you have followed the same thing. So this is the logic, this is the concept that we do here. 2044 is the correct answer. All right. So friends, this is all from my side for the day. I hope you would have enjoyed this lecture. I hope you would have learned something new in this lecture. काफी लोगों के कंसेप्ट बहुत क्लियर थे, पहले से ही मैंने ऑब्जर्व किया, बट एटलीस्ट आज 1 घंटे जो हमने पढ़ाई की है उसमें कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, छोटी मोटी चीज सीखी होगी, टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट। सो आई होप you are enjoying these sessions. I will see you on the next Saturday at the same time. Till then, have a wonderful day. Wait. So, एक क्वेश्चन था किसी का डाउट, यस, तो हमें 5 मिनट 10 मिनट उस पे भी बिताना है। सो सबसे पहले मैं कौन स्टूडेंट था, चलिए, सो डाउट, सर विच इज द न्यू लेक्चर, सर विच न्यू लेक्चर विल कम? न्यू नहीं है यार, नेक्स्ट वीक। आज कुछ बच्चों ने, आज कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शंस दिए हैं, राइट। सो नेक्स्ट सैटरडे मेरा 6 o'clock आपको सेशन मिलेगा, ठीक है। सर मॉक स्टार्ट कब करें कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, बस रिवीजन बचा है। सो जिन लोगों को ये पूछना है कि मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब करें, रिवीजन कैसे करें, लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए, लास्ट 35 डेज में क्या करना चाहिए, सो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया जो आपके पास कल या परसों में आ जाएगा, संडे या मंडे को यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा वो वाला वीडियो, and using that video you will be able to plan your revision and mock test series, right? Mr. Gamer, yes, Mr. Gamer था वो। इतने टाइप के ही आते हैं आईपी मैट में, नहीं ही और भी टाइप्स के आ सकते हैं क्वेश्चंस, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, एंड मैंने जो मेन प्रिंसिपल है वो कवर कर दिया है। I'm from Crash Course. Can you please tell me our plan till when our syllabus will be completed? Harshita, you are from Crash Course. Now, Harshita, logical reasoning, data interpretation के लिए अगर मैं बात करूं, so I can talk about that. And the syllabus will be completed for logical reasoning and data interpretation. The syllabus will be completed
टिल मिड ऑफ अप्रैल। 15-16 अप्रैल के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हमारी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, 10-15 क्लासेस और बची हुई हैं, एंड आई ट्राई टू फिनिश लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस टिल 15-16 और मैक्सिमम 17 ऑफ अप्रैल, सो दैट आपके पास जिपमैट से पहले एनफ टाइम हो रिवीजन करने के लिए। सर वीक में 3 क्लासेस हो रही हैं, प्लीज क्लासेस इंक्रीज कीजिए। मिस्टर गेमर, ये मेरे हाथ में नहीं है, बट डेफिनेटली मैं जो आपने सजेशन दिया है, आई विल गिव द सजेशन टू द टीम। सूरज सर, मैं काफी टाइम से रिवीजन कर रहा हूं, पर मेरे साथ हो क्या रहा है कि मैं एक टॉपिक रिवाइज करता हूं और दूसरे पे जाता हूं, तो फिर 1-2 दिन में पहले वाले के कंसेप्ट भूल जाता हूं। सर सूरज, अब आपको क्या करना है, आप अभी चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हो, ठीक है? तो चैप्टर वाइज रिवीजन में क्या हो रहा है, आप अपने आप को एक चैप्टर की मेमोरी उसको टेस्ट कर रहे हो। अब आपको क्या करना चाहिए, सेक्शनल पेपर्स करने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए, सो दैट आपकी जो मेमोरी है, आपकी रिटेंशन है, वो एक पूरे सेक्शन के लिए टेस्ट हो जाए। एंड आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यस, योर मैसेज इज विजिबल, प्लीज गो अहेड। मेरे बोर्ड्स अभी खत्म हुए हैं यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सर फॉर जिपमैट विच बुक इज बेस्ट? विशाल, मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं यार, जिसने भी सेशन लेट ज्वाइन किया है, चीजें कंप्लीटली नहीं सुनी है, प्लीज, मैं अभी वो वाले क्वेश्चंस इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं आज क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, सो सूरज, यू आर आस्किंग अबाउट क्वांट के टॉपिक। सूरज, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन क्वांट, ठीक है? आई एम टीचिंग LRDI हियर, ओके? सो द फैकल्टी हु इज टीचिंग क्वांट, आपको उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है? बट स्टिल फॉर क्वांट भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अर्थमेटिक के टॉपिक्स कर रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, एंड नेक्स्ट चैप्टर पे जाते ही आप प्रीवियस टॉपिक्स भूल जाते हो, तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है? सो सारी चीजें नहीं भूलते होगे आप, कुछ ना कुछ थोड़ी 3-4 चीजें भूल जाते होगे, तो इसके लिए आपको रिवीजन एवरी वीक के एंड में आपको रिवीजन करनी जरूरी है, ठीक है? एंड सेक्शनल टेस्ट देने स्टार्ट करो, उससे आपकी रिटेंशन इंक्रीज होगी। आईपीमेट प्रो बैच है मेरे पास, यूज करूं या एमबीए फाउंडेशन प्लेलिस्ट से? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन सर। अगर आपके पास आईपीमेट प्रो बैच है, आपके पास सारे लेक्चर्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप एमबीए प्रो बैच यूज करो। लेट्स से यू हैव not a clarity about the basics of any topic, so go and watch the lectures, right? If you have complete clarity about the basics, then हर एक क्लास को दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा है एग्जामिनेशंस के लिए। सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, योर नीड, यू नीड टू डिसाइड, ओके? सर मैंने पहले 5 अगस्त से oh, now Sam, you are saying IPMAT Pro Batch, MBA Foundation, अब IPMAT से MBA कहाँ पे चले गए आप? सर मॉक ही तो देता हूँ, तब पता लगता है कि क्या सिचुएशन है। सर के लेक्चर क्वेश्चन इतने आसान लगते हैं, मॉक में नहीं होते। सूरज, प्रैक्टिस की कमी है सिर्फ, ठीक है? प्रैक्टिस की कमी है, आप घबराओ मत। ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है कि जब मॉक टेस्ट सीरीज सामने आती है ना, तो हमें अपने वीक एरियाज पता चलते हैं। तो आई विल गिव यू अ बेस्ट सॉल्यूशन। मॉक देने के बाद आप क्या करो, मॉक का एनालिसिस प्रॉपरली करो। 2 घंटे 3 घंटे आप मॉक पे स्पेंड करते हो, उसके बाद 2-3 घंटे आप एनालिसिस पे भी स्पेंड करो, ओके? एनालिसिस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपके वीक एरियाज क्या हैं। तो आज जैसे आपको समझ में आया कि यार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर ब्लड रिलेशंस, या फिर कोई भी रैंडम टॉपिक के क्वेश्चंस आप भूल जा रहे हो बार बार, तो मॉक के बाद, एनालिसिस के बाद आप उन वाले टॉपिक्स को रिवाइज करो, ठीक है? तो आप सिलेबस एक बार कर चुके हो, दोबारा सिलेबस करने का कोई फायदा नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट आपको मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने वीक एरियाज प्लग करने हैं अब, ऑलराइट? एनालिसिस कैसे करूं? सो एनालिसिस चलो फटाफट बता देता हूं 1 मिनट में। जितने भी क्वेश्चंस आपने टेस्ट में किए, लेट्स से 40 क्वेश्चन से टेस्ट में, सो 40 क्वेश्चंस में से 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे जो आपने सही कर दिए,
जो आपने गलत किए और जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। सबसे पहले अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखो एंड फाइंड आउट द रीजन क्यों अनअटेम्प्टेड छोड़ा। अगर टाइम नहीं बचा था तो छोड़ दिया, फाइन, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो सबको, ठीक है। अगर आपने इनको देखा, आपको दिखा कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे से होगा ही नहीं और आपने छोड़ दिया, देन अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई यू हैव लेफ्ट, कि खाली क्यों छोड़ दिया इसको, आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया। लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, आपको कंसेप्ट याद नहीं है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, तो रीजन आउट करो एंड फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देन ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस देखने के बाद आप जो क्वेश्चंस गलत किए हैं उन पे आओ। जो भी क्वेश्चंस गलत किए हैं, आपने कैलकुलेशन एरर किया है, कंसेप्ट गलत यूज कर दिया, रीजन आउट करो एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर जो क्वेश्चन सही किए हैं एक बार उनको भी विजिट करो, ठीक है, एंड ये देखो कि कहीं तुक्के से तो सही नहीं हुआ है, फाइन, या फिर कोई लेंदी मेथड यूज किया है। सो आपको 3 to 4 आवर्स एनालिसिस पे बैठना पड़ेगा, मिनिमम 2 आवर्स तो बैठना ही पड़ेगा एनालिसिस पे, राइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ कंप्लीट एनालिसिस नीड्स टू बी डन। ऑलराइट, ग्रेट। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल। नहीं यार, एमबीए आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमबीए फाउंडेशन प्लेलिस्ट, इट विल हार्डली हेल्प यू स्टिक टू आईपी मैट प्रिपरेशन बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत डिफरेंट है। ओके, फाइन, चलिए। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। I'll see you in the next class on the next Saturday, and if you have any general queries you can bring along, I'll be helping you with those as well. All the very best. Have a nice time. Bye bye.